Hello, good morning everyone. My name is Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to learn simple harmonic motion. Okay? Today we learn simple harmonic motion. Displacement equation of a particle in SHM क्या होता है? Y equal to a sin omega t plus phi. Okay? Where omega is a angular velocity, phi is the initial phase, and a is amplitude. Okay, and t is the time period t equal to होता है 2 pi by omega, where frequency n equal to 1 upon t equal to omega upon 2 pi. Displacements versus time graph of y equal to a sin omega t. Here is a graph between y and time t. Okay, which is sine graph. Okay, here 0 to t by 2 is half cycle. Okay, t by 2 to t next cycle and so on. Okay, here f frequency f, or we can say that n equal to 1 upon t equal to omega upon 2 pi. Okay, this is our general equation of particle in a SHM. Y equal to a sin omega t plus phi. Okay, next topic is velocity expression for a particle in SHM. U equal to a omega cos omega t. Okay, as a function of time t. Okay, as we know that y equal to a sin omega t. If we differentiate y with respect to t, then we get the value of velocity. Okay, velocity expression, which is equal to a omega cos omega t. Okay, here after solving the equation y equal to a sin omega t and u equal to a omega cos omega t, we get the expression u equal to omega under root a square minus y square as a function of displacement y. Okay, it is as a function of displacement y. If y equal to 0, if we put the value of y here, which is y equal to 0, then we get maximum velocity u max equal to omega under root a square minus 0, which is equal to a omega. Second is, when we put the value of y equal to a, then we get minimum velocity, which is equal to omega under root a square minus a square, which is equal to 0. So we can say that maximum velocity is equal to a omega and minimum velocity is equal to 0. Okay, next is acceleration of a particle in SHM. Okay, which is equal to acceleration a equal to minus omega square y. Okay, here first point is, if y equal to 0, then minimum acceleration. जब वैल्यू ऑफ y, जो हमारी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 होगी, तब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा, विच इज इक्वल टू 0. इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन वी गेट, विच इज a max इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू m में, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा y. ओके, हियर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ओके, देखिए ये हमारा एक मतलब पेंडुलम है, जो कि उसका जो कि यहाँ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, और इसमें 10 से मान लीजिए टी हो गया. ठीक है, नीचे एम जी लग रहा है, यहाँ थीटा एंगल पे क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा हो जाएगा. ओके, so we can say that t equal to 2 pi under root L by G. जो हमारे टाइम पीरियड का फार्मूला है क्या होगा? t equal to 2 pi under root L by G. SHM in spring block system. देखिए SHM in spring block system, restoring force F equal to minus kx, F equal to ma, or if we put the value of F here, minus kx is equal to ma,
then we get the value of acceleration which is equal to a equal to minus k by m into x. Okay, look here, we get the value of acceleration which is equal to minus of k by m into x. Displacement, where x is a displacement and a is the acceleration which is equal to m by k. Okay, here time period t equal to 2 pi under root L by g. We replace the value of L is equal to x. Okay, so we can say that time period t equal to 2 pi under root x by a, which is equal to 2 pi under root m by k from here. Okay, फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन m इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ टू स्प्रिंग्स. जो हमारा मास m सीरीज में कनेक्ट हो दो स्प्रिंग के साथ, तो उसके लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, चलिए हम देखते हैं. एज वी नो दैट टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है. ठीक है, जब स्प्रिंग हमारा देखिए, मान लीजिए दो स्प्रिंग है और दो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका जो नेट वैल्यू आपके होगा, कांस्टेंट के का वैल्यू होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो वो अगर सीरीज में है स्प्रिंग, तो जैसे हम रेजिस्टेंस को जब सीरीज में रहता है तो ऐड करते हैं, और पैरेलल में रहता है तो मतलब मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय देयर सम. ओके, और उसका जस्ट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है के का. इसमें क्या हो जाएगा, ये दो अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो k इक्वल टू हो जाएगा k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2. ओके, वी पुट द वैल्यू ऑफ k हियर, वी गेट 2 पाई अंडर रूट m इंटू k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k1 k2. ओके, फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, when two springs are connected in series with a mass m. Okay, सेकेंड केस, when m is connected between two spring. जब मास हमारा दो स्प्रिंग के बीच में कनेक्टेड हो तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो उसको हम एक पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड t इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के. हियर वी पुट k इक्वल टू k1 प्लस k2. ओके, फाइनली वी गेट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 प्लस k2. ओके, थर्ड केस, व्हेन m इज कनेक्टेड विथ टू स्प्रिंग इन पैरेलल. जब मास हमारा m दो स्प्रिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा. टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के. जब पैरेलल में दो स्प्रिंग रहे तो उन स्प्रिंग को हमें ऐड कर लिया जाता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 प्लस k2. ओके, this is our final expression when two springs are connected in parallel with a mass m. Okay, next is, if potential energy of a particle is defined by some function u of x y z, then minus of u del u upon del x equal to fx minus del y equal to fy minus del u upon del z equal to fz. Okay, derivative keeping y z constant here and derivative keeping x z constant, and here derivative keeping x y constant. Okay, this is our expression for force fx, fy and fz. Okay, also if del u बाई डेल एक्स का जब डबल मतलब u का डबल डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स रजिस्टर्ड में, एड x इक्वल टू एक्स नॉट, जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा u का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रजिस्टर्ड में डबल डिफ्रेंसिएशन अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. ओके, अगर जब निगेटिव वैल्यू आती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम and we can say that it is in unstable equilibrium. ओके, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा
जब सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो जो है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा और न्यूट्रल होगा, इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम and here it is the graph for unstable and this is the graph for neutral equilibrium. okay, here potential energy is जो है पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये ग्राफ शो करेगा हमारा, ठीक है। और ये जब उसकी वैल्यू निगेटिव आती है और जब उसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये वाला ग्राफ शो करेगा। ओके, हियर energy expression for a particle in SHM. Potential energy when displacement is y, u equal to half of m omega square y square. Okay, as we know that potential energy is equal to होता है, क्या होता है, as we know that potential energy is equal to half m v square. if we put the value of v which is equal to होता है ओमेगा y, then we get potential energy u equal to half of m omega square y square. okay, here the expression for the kinetic energy when displacement is y, kinetic energy equal to होता है हाफ m omega square in bracket a square minus y square. okay, total energy of a particle equal to k plus u which is equal to half m omega square in bracket a square minus y square plus potential energy which is half m omega square y square. So finally we get the value of total energy which is equal to half m omega square a square. okay, this is the value of our total energy of a particle which is equal to half m omega square a square. okay, स्पेशल कंडीशन कुछ है, चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ओके, एंड हियर वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m omega square a square. So we can say that total energy is directly proportional to square of a square, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, सिंस सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंस ओमेगा इक्वल टू 2πn, सो टोटल एनर्जी इज, तो टोटल अगर हम ओमेगा की वैल्यू 2πn रख देते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2πn, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2π स्क्वायर m यानी स्क्वायर a स्क्वायर। सो वी कैन से दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, थर्ड इज व्हेन y इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, व्हेन y इक्वल टू a, जब y की वैल्यू a के बराबर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और जब y 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ओके, हियर वी लुक ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM a वर्सेस x। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड फोर्स इक्वल टू होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए a जो हमारा है एक्सेलरेशन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ऑफ एक्स के। सो जो हमारा ग्राफ होगा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो है स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगी ओरिजिन से। ओके, और एफ वर्सेस एक्स के केस में
देखिए फोर्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो वी कैन से दैट जो हमारा फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, माइनस ऑफ एक्स। सो वी कैन से दैट the our graph will be in second and fourth quadrant, which is also a straight line passing through an origin. Okay, passing through a origin. Next is v versus x. As we know that velocity formula क्या होता है, velocity equal to होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, here after solving this equation we get v square divided by omega square plus x square divided by 1 is equal to 1, which is an ellipse. Okay, it is a ellipse, it represents an ellipse. So our graph will be an ellipse laying on x axis. Okay, it is v versus x graph. And here next is p square versus x square graph. As we know that v equal to होता है हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. if we square both side then we get v square is equal to omega square a square minus omega square x square. Okay, and this is the graph between the v square and x square. Okay, next and last point is energy graph, kinetic energy versus x and potential versus x and total energy versus x. Okay, here as we know that kinetic energy is equal to half m omega square in bracket a square minus x square, and potential energy is equal to half m omega square x square, and total energy equal to half m omega square a square is equal to constant. Here we get kinetic energy directly proportional to minus half x square, and potential energy is equal to potential energy directly proportional to x square, which represent parabola. Okay, देखिए दोनों ही पैराबोला को शो करेंगे, लेकिन जो है पैराबोला काइनेटिक के केस में जो है कर्व होगा वह डाउनवर्ड होगा, और पोटेंशियल के केस में अपवर्ड होगा. क्यों होगा, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है. ओके, और जो हमारा जो टोटल एनर्जी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है. सो वी कैन से दैट जो टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा एक कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन को हियर रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस ऑन विच वी रिप्रेजेंट माइनस ए एंड प्लस ए. थैंक यू टू यू ऑल. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें. थैंक यू.